हम जिस प्लेटफॉर्म के लिए आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एसोसिएशन के साथ जुड़ी हैं आप, पोस्ट हैं। देखिए मैं येस बेटिंग शुड बी लीगलाइज, पर मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये कहना चाहती हूँ फिक्सिंग ऑफ एनी काइंड, बी इट स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग, इट हर्ट्स द गेम एंड इट्स फैंस अ ग्रेट डील। तो जब भी ऐसी चीज़ें उभर के बाहर आती हैं तो थोड़े समय के लिए इंडिया का जो नेशनल पैशन है वो एकदम से जैसे ठप हो जाता है। पर हैविंग सेड दैट, इसके बाद एक बहुत बड़ा क्लीन अप जॉब होने वाला है हमारे होना चाहिए होने वाला है yes. हमारे बड़े स्पोर्ट्स बॉडी में, एंड दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट। सो इफ दिस इज व्हाट्स लेड टू अ क्लीन अप जॉब, देन इट्स आई सपोज इन सम वे अ गुड थिंग। No, I think I don't have enough information about this to talk about it with complete legitimacy. But all I know is that spot fixing and match fixing are horrible things. I love the game of cricket with all my heart, and it really pains me to see that something like this, if it is to be proven right, it would really, really hurt me. It hurt me when it happened 10-15 years ago. And it took a lot to get back into loving the game, and now that it has, to know that it's back is horrible. People invest so much of their time and energy and passion into the game. Yeah, you give your life for the game. It's very hurtful. It's very, very hurtful, like I said, to the game and to the fans when something like this is proven. Okay, Thank you guys. Thank you so much. My heart, my well-being. Guys, just show me the frame. Ready? प्राची, हम यहाँ पे जेनेट सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, तो जानना चाहेंगे कि अगर आप अपने सोल्जर में क्वालिटी ढूंढना चाहेंगे तो कौन कौन सी क्वालिटी आप I'm sure that the first thing I'd look for would be somebody who's extremely supportive, encouraging, and yes, should have the soldier courage in him. one actor who you think has the soldier courage in him? I think Mr. Bachchan would be the answer to that. I think he's just the epitome of that, for all of us. He's been there and always set an example for everybody in the industry. And I think I could gladly and proudly say that because I have met him in person, and I am 100% sure that he has many more than these qualities that I just said. इसके अलावा कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरे करने के साथ? एक्चुअली मैं जिलेट सोल्जर फॉर वुमेन के लिए आज मैंने पहला इवेंट अटेंड किया है, सो आई एम फेयरली न्यू टू दिस, पर आज से कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जब मुझे पहली बार इसके बारे में पता चला, आई थिंक आई वाज एक्चुअली क्वाइट मूव्ड, क्योंकि हम हमेशा बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वी एड्रेस अदर इश्यूज़ एंड वी पिक ऑन मेन फॉर द रॉन्ग रीजंस एंड ऑल द बैड थिंग्स, बट हम कभी भी इस बात को एड्रेस नहीं करते हैं कि एवरी मैन हैज़ अ सोल्जर इन हिम, एंड it's not that we expect them to go and fight war. It's just that हमारी लाइफ में भी I'm sure ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो supportive हैं. When we need them the most, हम कुछ कहते नहीं हैं, but they're there, and that doesn't mean that we want to be protected. It just means कि कभी for example, I'm sure if a guy is sitting somewhere and वहाँ पर जगह नहीं है, if he sees you, he's surely going to get up and offer you a seat over there. But we are so thankless about that. हम इस बात के बारे में कभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं. We think they have to do it. I think these are the small things that we are talking about now. And Soldier for Women इस movement के लिए already बहुत सारा support आया है. 1.2 crore people ने already pledge किया है इसके लिए, and I've just been added to that because I pledge my support to it also. And 3 lakh people have written it. उन्होंने खुद अपना personal experience बताया है, हमें about how they've experienced that one soldier in their life. So I'm so happy to be a part of it. Okay, इसके अलावा आपका कोई experience है जब आपने किसी की help की जो आपने I always do my bit. मुझे actually whenever I see old people on the road, it's just something that
आई वांट टू गो आउट देयर एंड जस्ट हेल्प देम। तो मैं हमेशा ही करती हूँ, यू नो, मैं आई पुट माई ड्राइवर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्योंकि अगर कभी मैं देख रही हूँ कि कोई ओल्ड मैन या लेडी इफ़ दे आर क्रॉसिंग द रोड, मैं अपने ड्राइवर को रुका देती हूँ उधर ही, एंड आई से दैट यू नो ईदर यू गो एंड हेल्प और आई विल गो एंड हेल्प दैट पर्सन क्रॉस द रोड। भले ही सिग्नल कुछ भी हो या ट्रैफिक का हाल कोई भी हो, एंड आई जस्ट ऑलवेज डू इट बिकॉज आई थिंक दैट you know they are not asking you for help, but you have to be there, you have to do it. So it's not about any protection that someone needs, it's just that you have to be there for them. Thank you. लक्ष्मण, आप कैसे जुड़े इस कैंपेन से? आई थिंक जब ये कैंपेन हैदराबाद आया था एंड ऑफ अप्रैल में, वो टाइम मैं जो है आईपीएल में बिजी था, बट मीडिया के थ्रू मालूम हुआ कि जिलेट ये कैंपेन कर रहे हैं, और इमीडिएटली कनेक्ट हुआ है बिकॉज मेरे ज़िंदगी में भी दो वुमन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। मेरे पहले तो मेरा माता जी, और उसके बाद शादी के बाद जो है माय वाइफ, यू नो। सो आई थिंक it's a great initiative जिलेट के, and I think I should compliment and congratulate them. और जो response मिला है ये initiative में is remarkable, you know, because almost 3 लाख stories जो you know heroism of men supporting the women और looking after the women जो है 3 महीने में मिलना काफ़ी मुश्किल बात है। आई थिंक इट्स ग्रेट दैट ये इनिशिएटिव जो है काफ़ी लोग अप्रिशिएट किए, और ये इनिशिएटिव जो है नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री में स्प्रेड हुआ है। तो आई थिंक मीडिया प्लेड ए बिग रोल इन डूइंग दैट, एंड आई कंग्रेचुलेट जिलेट बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है अपने कंट्री में, कॉज ऑफ कंसर्न है। स्पेशली जो है लास्ट ईयर जो इंसिडेंट्स हुए दिल्ली में, असम में, दूसरे पार्ट्स ऑफ अ कंट्री, बहुत ख़राब इंसिडेंट्स हुए, और सिविलाइज सोसाइटी में वैसे इंसिडेंट्स होना ही नहीं चाहिए। तो आई थिंक ये मैसेज पास कर रहे हैं थ्रू दिस कैंपेन की एक औरत को जो है डिग्निटी, रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए, और एक इक्वल के साथ ट्रीट करना चाहिए, जो मुझे मेरे माता पिता ने छोटे जब से ही सिखाया है। लक्ष्मण, आपको लगता है कि ये ऐसे कैंपेन चलने से जो आजकल का जो माहौल चल रहा है, आजकल के लड़कियों के प्रति जो सोच है वो बदल जाएगी? किस हद तक बदल जाएगी? नहीं, लड़की के और काफ़ी माहौल बदलने से है, और इवन माइंडसेट भी चेंज है, बिकॉज सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बट इंसिडेंट्स थोड़े ऐसे होते हैं जो नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक इट्स ग्रेट कि ये कैंपेन जो है वापस वो रीइंफोर्स कर रहा है कि कैसा आप एक औरत को ट्रीट करें। और इम्पॉर्टेंट है नॉट ओनली जब आपके ओन रिलेटिव, फ्रेंड या बहन हो या सिबलिंग हो, उनको ही नहीं, जो औरत आप नहीं जानते कुछ तकलीफ़ में, तो कैसा आप जाके वो औरत को सपोर्ट करते हैं, कैसा वो औरत का रक्षा करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और वो ये कैंपेन के थ्रू अच्छा मैसेज पास हो रहा है। लक्ष्मण, आप किसके लाइन में सोल्जर बने, किसी औरत के? थोड़े इंसिडेंट्स है, बट मैं जो है मेरे पिताजी का छोटे जेब से ही मैं देखता था, क्योंकि पिताजी काफ़ी बिजी डॉक्टर थे और मेरे मदर भी बिजी डॉक्टर है, और जब डोमेस्टिक हेल्प घर में काम वाले नहीं आए तो मेरा पिताजी जो है मदर को हेल्प करते थे, और वो अलग लगता था बिकॉज एक बड़ा डॉक्टर जो है घर में काम कर रहे हैं, एंड वो इक्वल के साथ ट्रीट करते थे मेरे मदर को। संडेज जो है ऑफ देते थे किचन से, और खुद ब्रेकफास्ट और लंच बनाते थे हमारे लिए, बच्चों के लिए। तो आई थिंक और उसके बाद अभी जो है जब भी मैं टूर्स पे जाता हूँ, मैं कंसर्न रहता है मेरा वाइफ और बच्चों का कैसा है। तो इट्स ग्रेट कि मेरे घर में जो वॉचमैन है या जो ड्राइवर है जो काम करते हैं, वो लोग मेरे वाइफ को एक सिस्टर के ऐसा मानते हैं। और बड़े लोगों ने, इवन अभी मेरा बेटा है, मेरे पास नेवर हैड ए सिस्टर, बट मेरा बेटा जो तरीके से प्रोटेक्ट करता है अपने सिस्टर को, कोई जब खेलते हैं वो लोग कोई प्रैंक्स करते हैं तो ही सो प्रोटेक्टिव ऑफ सिस्टर। सो बच्चों से भी सीखा जा सकता है कि कैसा एक औरत का, एक लड़की का रिस्पेक्ट करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए। यूथ को क्या मैसेज देना है यंग जनरेशन? यही मैसेज है कि इंडियन कल्चर, इंडियन माइथोलॉजी जो है, एक औरत जो है ऑलमोस्ट गॉडेस के समान है, एक देवी के समान है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो याद करे कि वो कल्चर से हम आए हैं, और हमेशा औरत को जो है रेस्पेक्ट, डिग्निटी के साथ ट्रीट करे, और एक इक्वल के साथ ट्रीट करे, और जो भी अपॉर्चुनिटी एक औरत एलिजिबल है वो अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। लक्ष्मण, आपसे जानना चाहिए कि कल आईपीएल के लिए बिकॉज ये जो है इसके लिए